right? So suppose I have two operands, one is 3, other one is 5, right? So these two operands I have, and I'm applying the operator plus on it. So if I am applying this operator, so after application I will get the output 8, right? Am I right? So you have 3 with you, you have 5 with you. After adding 3 with 5, you will get 8, right? So here 3 and 5 are the operands, and plus is an arithmetic operator. Now similarly, if you want to take this concept in DBMS and in relational algebra, so now instead of operands we have relations, right? R1 will be our one table, R2 will be our another table, right? So now we are working on tables and not operands. So there will be two tables, suppose R1 and R2, and after applying any operation, any relational operator on it, you will get one resultant table that will be R3. Okay, so this is the easiest way through which I can explain that how relational algebra is working. So in mathematics, if we need operands to operate, in relational algebra, you need the relations, I mean tables. And here plus doesn't mean that two relations will get added. Here plus means that you are applying any relational operator on two relations. The plus can be union, the operator can be intersection, it can be projection, it can be selection, and so on. Okay. So other than those operators that we discussed, these one, selection, projection, Cartesian product, union, and set difference. Just wait. I think there are some students in the waiting list. No. Okay, fine. Okay, so other than those students, there are some other also like join, intersection, division operations that can also be expressed. Okay, now the function of each operation is illustrated in figure 4.1. I will take you to that also. The selection and projection operators are unary operators. Okay, you remember unary means that need only one operand, जिसको काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए है. ठीक है, अब हमने ऑपरेंड की तो बात करनी नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल्स. ओके, तो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन जो है ये यूनरी ऑपरेशंस हैं. इसका मतलब क्या है, इनको कितने रिलेशंस चाहिए, कितने टेबल्स चाहिए, सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर ये चल जाते हैं, राइट? जो बाकी ऑपरेशंस हमने बोले हैं, मैंने जो भी बोले हैं लाइक इंटरसेक्शन, यूनियन, जॉइन, डिवीजन, ये सारे क्या हैं, ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं. बाइनरी मींस इनको मिनिमम दो टेबल्स जो है वो चाहिए अपना काम करने के लिए, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे. कुछ होते हैं सेट ऑपरेशंस. सेट ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं? यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इसमें से आपने तीन तो बच्चे पाइथन में पहले ही पढ़े हुए हैं. कौन कौन से? यूनियन, सेट डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन. पढ़े हुए हैं ना ये सारे? जस्ट लेट मी नो, यस और नो. Yes, Mahak says yes. Other than Mahak, no one is replying. Okay, let's give someone the rights to unmute. Okay, let's unmute Rishabh. Rishabh, unmute yourself. You are present. It means Rishabh has joined the meeting and then he has placed her phone somewhere. उसने अपना phone कहीं पे रख दिया है और उसके बाद वो टीवी देख रहा है. Let's ask this question to Rubal. Rubal is still not, he is not physically present also. Okay, let's ask Sachin Kumar. हेलो. हेलो. हाँ जी मैम. सचिन, आपने ये ऑपरेशंस पहले पढ़े हुए हैं पाइथन में कि नहीं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस. हेलो. 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 हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है. पढ़े हुए मैम.
हाँ जी, पढ़े हुए हैं, चलो ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। गुड, म्यूट योरसेल्फ। ओके फाइन. So these are the operations, the set operations that we will study. Then there are unary operations. Unary operations कौन से हैं? Selection, projection, and then there are join operations. Join operations में हमारे पास कौन से joins हैं? There are equi-join जिसको हम theta join भी कहते हैं, natural join है. Join means that you are joining two tables, right? थ्री भी आप ज्वाइन कर सकते हो. थीटा और इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड सेमी ज्वाइन. और उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक ही कैटेगरी है, डिवीजन. ओके. उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट एंड ग्रुपिंग ऑपरेशंस है. उसमें हमारे पास एग्रीगेट ऑपरेशन है एक और एक है ग्रुपिंग ऑपरेशन, राइट. तो लेट्स स्टार्ट इट प्रैक्टिकली. सपोज हमारे पास एक रिलेशन, एक टेबल है एंड द नेम ऑफ दैट टेबल इज आर. Okay, and it has two columns, customer name and customer status. Okay, and then we have one more table S, and the column names are again customer name and customer status, right? If you want to calculate R union S, so you remember union क्या होता है? Union बच्चे दोनों में से रोज लेता है, ठीक है, लेकिन उसने कौन सी रोज लेनी है जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है. कॉमन वाली तो उसने उठानी ही उठानी है, जो नहीं कॉमन है उसने वो भी उठानी है, राइट. कॉमन वाली अगर है, दोनों में ही कोई रो प्रेजेंट है तो उसने उसको एक बार ही कंसीडर करना है, और जो रो दोनों में अलग अलग है उनको भी उसने कंसीडर करना है, राइट. सो कैन यू सी हियर? ओके, देयर इज सम मिस्टेक हियर, लेट मी चेक इट. ओके, सो सपोज इसमें मेरे पास जो कॉलम है उसमें दो कॉलम्स में मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? एक है करण और एक है उसका स्टेटस बैड, राइट. सो आप देख पा रहे हो इसमें मेरे पास 3 रोज हैं, इसमें मेरे पास 2 रोज हैं, ठीक है. जब मैंने दोनों का यूनियन किया तो यूनियन ने क्या किया? पहले दोनों में जो कॉमन रोज है उसको एक बार लिख दिया. श्याम गुड, श्याम गुड दोनों में प्रेजेंट है, सो इट हैज कंसिडर्ड इट इन द फाइनल वन, श्याम एंड गुड. उसके बाद राहुल एक्सीलेंट, तो राहुल एक्सीलेंट दोनों में ही प्रेजेंट है तो उसने उसको भी कंसिडर कर लिया फाइनल में. उसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो आर है उसमें करण बैड जो है वो एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एस में वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. पर क्योंकि वो आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हमने कंसिडर करना है. तो करण बैड जो हमारा जो यूनियन है उसमें हमारे पास टोटल 3 रोज आ गई हैं. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप yes very fast. Okay, this is an easy concept. Okay, fine. उसके बाद बच्चे सिमिलरली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम? आई मस्ट से कि मेरे पास कुछ टेबल्स में गड़बड़ हुई है. नहीं, टेबल्स में गड़बड़ नहीं हुई. तो सपोज करो वी हैव द सेम टेबल्स आर एंड एस, ठीक है, यही वाले. अगर इसके ऊपर मैं इंटरसेक्शन लगा रही हूँ ऑपरेशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन हियर? इंटरसेक्शन मीन ओनली कंसिडर द कॉमन वैल्यूज. कॉमन मीन जो इसमें भी एग्जिस्ट करती है और इसमें भी एग्जिस्ट करती है, आई वांट टू कंसिडर दैट ओनली. Now Sham good exists in both the tables R and S. Okay, so it will be considered. Rahul excellent is also a part of both the tables, so it will be considered. However, this Karan and Bad is only the part of R table. इसे सिर्फ फर्स्ट में है ना, आर में ही सिर्फ ये वाली एंट्री है करण और बैड, एस में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. तो इंटरसेक्शन में हमने वो वाली रोज लेनी होती है जो दोनों में कॉमन है. तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास एंट्री आएगी दैट विल बी, लेट मी चेंज इट, यहाँ पे आएगी एंट्री, दिस विल बी आर राहुल एंड एक्सी. डू यू एग्री और नॉट? ऐसे चलेगा बच्चे? इंटरसेक्शन ऐसे ही चलता है, दोनों में से कॉमन रोज जो है वो हमने लेनी है. यस और नो? यस. Okay. After that, we have this R minus S. It means
R minus S means all those rows from R which are not present in S. ठीक है, R की वो सारी रोज हमने कंसिडर करनी है, लेकिन शर्त है कि वो वाली रोज जो S में ना हो वो ही आएंगी। अब देखो श्याम और गुड जो है S में भी है तो नहीं आएंगी, राहुल और एक्सीलेंट S में भी है तो नहीं आएंगी, करण और बैड, ये मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ की हुई है, नो इट्स करेक्ट। ठीक है, तो R माइनस S मीन्स आप R में से S को माइनस कर रहे हो, इट मीन्स योर फोकस विल बी ऑन S। ठीक है, तो वो वाली रोज जो S में है लेकिन R में नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मैं चेंज करूंगी यहाँ पे। I have picked it from online source and it's somewhat wrong. This is actually S minus R and this is R minus S. Okay, so it means S minus R means those rows from S which are not present in R. Okay, and R minus S means those rows from R which are not present in S. Okay, R की वो वाली रोज जो S में नहीं है, तो आप देख रहे हो कि R की सिर्फ करण और बैड है जो S में नहीं है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया और उसका ऑपोजिट जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यू कैन चेक इट। उसके बाद बच्चे जो एग्जैक्ट ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनरी ऑपरेशंस में हम सिलेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, फिर हम ज्वाइन ऑपरेशंस करेंगे, और ज्वाइन में हम ये 4 कैटेगरीज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिवीजन ऑपरेशंस हैं और एग्रीगेट एंड ग्रुपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेशन में सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन, और इसको हम रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट। हमने जब सिलेक्शन किया था, सिलेक्ट किया था, तो वो क्या करता था कि अगर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, सॉरी, लाइक हम वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं, तो सिर्फ रोल नंबर 1 वाला रो जो है वो आता है, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाकी रोज जो है वो हमें आउटपुट में नहीं शो होंगे। ठीक है, सिमिलरली सिलेक्शन यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, लेकिन जब हम इसको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो सिलेक्शन जो है बच्चे वो किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होता है, सिग्मा। सिलेक्शन किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो द सिलेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, इट मींस इसको 2 रिलेशंस नहीं चाहिए, ये एक सिंगल रिलेशन के ऊपर काम करेगा, राइट, एंड डिफाइंस अ रिलेशन, एक नया रिलेशन बनेगा। ठीक है, आउटपुट रिलेशन बनेगा दैट कंटेन्स ओनली दोस टपल्स ऑफ आर, उसमें सिर्फ आर की मेन रिलेशन की वही टपल्स आएंगी जो कि इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करें। अब वहां पे हम टर्म यूज करते थे कंडीशन, सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ऐसे करते थे। अब यहाँ पे सिलेक्ट की जगह पे हमने क्या लगा देना है, सिग्मा। ठीक है, टेबल नेम की जगह पे हमारा आर आ जाना है, रिलेशन जिसके ऊपर सिग्मा लग रहा है, और कंडीशन की जगह पे हमने क्या लगा देना है, प्रेडिकेट। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, प्रेडिकेट। ये क्लियर है सबको? इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज सिग्मा, देन देयर इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप देख पा रहे हो दैट इट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मींस ये आपके सिग्मा से थोड़ी सी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, एंड देन वी हैव द रिलेशन इन ब्रैकेट्स, वो वाला रिलेशन जिसके ऊपर हमें सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो लगाना है। ठीक है संजीव, क्लियर है अब? उसके बाद बच्चे ये एक आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेशन की एक एग्जांपल है। ये मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, दिस रिलेशन, और यू कैन से दैट ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल का नाम क्या है, स्टाफ, और इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, देयर आर कॉलम्स विद द नेम स्टाफ नंबर, देयर इज एफ नेम, फर्स्ट नेम, स्टाफ का फर्स्ट नेम, आई, ये आई नहीं है, ये एल है, एल मीन्स उसका लास्ट नेम, उसका पोजीशन, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका सैलरी, उसका ब्रांच नंबर, राइट। तो अब ये जो क्वेरी है ये क्या मांग रही है, इट इज आस्किंग फॉर लिस्ट, लिस्ट मतलब डिस्प्ले कराओ, है ना, ऑल स्टाफ, सारे स्टाफ को डिस्प्ले कराओ
जिनकी सैलरी जो है वो किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन 10,000 पाउंड। ये पाउंड्स का सिंबल है यहाँ पे, इसकी कोई टेंशन नहीं है डॉलर है कि पाउंड की सैलरी में उसने कोई भी सिंबल मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो लिस्ट ऑल स्टाफ मेंबर्स विद द सैलरी ग्रेटर देन 10,000। जनरली अगर आप इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखते तो कैसे करते, आप लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। Am I right? ऐसे लिखते हैं आप इसको। है ना, ऐसे लिखते हैं। आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, मतलब सारा ही डिटेल डिस्प्ले करवा लेते हैं। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टाफ, वेयर, किसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, सैलरी के ऊपर ग्रेटर देन 10,000। पर क्योंकि हम इसको थ्योरेटिकल वे में रिलेशनल अलजेब्रा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला कंसेप्ट यूज करके, तो आपने क्या लिखना है, सिग्मा, और प्रेडिकेट की जगह पे आपकी कंडीशन आ जानी है, कंडीशन इज सैलरी ग्रेटर देन 10,000, दैट्स इट। और उसके बाद आपने सिर्फ रिलेशन का नाम लिखना है ब्रैकेट्स में, जिसके ऊपर आपने ये कंडीशन अप्लाई की है, वो क्या है, स्टाफ। ये क्लियर है बच्चे आपको, ये इजी है और इसको समझना थ्योरेटिकली बहुत आसान है, क्लियर है। सिर्फ संजीव, महक और सबरीत, ये बच्चे, या सिद्धार्थ, ये बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग। काफी तो बच्चे सुन भी नहीं रहे हैं। और ये देखो, जब जब आप जो, अगर आपको ये चीज समझ आती है तो ही आप इसको लिख पाते हो। बिहार के बच्चों का मेन प्रॉब्लम ये है कि चीटिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि कैसे लिखना है, क्या हुआ है क्लास में। चलो उसके बाद बच्चे, ये इस चीज को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इनपुट रिलेशन कौन सा है, स्टाफ, और जो कंडीशन जिसको मैं प्रेडिकेट बोल रही हूँ वो क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000। The selection operation defines a relation containing only those staff tuples with the salary greater than 10,000। तो अब इसमें आप देखो 10,000 से ज्यादा वाली कौन सी रोज जो है वो क्वालिफाई कर गई, ये भी क्वालिफाई कर गई, ये भी कर गई, ये भी, ये नहीं की, ये भी कर गई, और ये नहीं की। तो टोटल 2 रोज जो है वो नहीं क्वालिफाई की, वो वाले स्टाफ की जिनका फर्स्ट नेम मैरी है या जूली है, बाकी सारी जो है 4 रोज जो है वो क्वालिफाई कर गई। तो आपको ये आउटपुट आया। तो ये आपकी रिजल्टेंट जो है आउटपुट है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो। यू रिमेम्बर, जिसकी सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा हो, ठीक है, और जिसका ब्रांच नंबर जो है वो B003 हो, मतलब आप दोनों ही कंडीशन चाहते हो, ठीक है, एंड लगेगा। तो एंड के लिए मैंने ए एंड डी एंड नहीं लगाना, उसके लिए जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका साइन ये है। आपको याद हो कि सीक्वल में हम एंड डी एंड लिखते थे, यहाँ पे हमने ये साइन लिखना है, और के लिए हमने ये साइन लिखना है, और नॉट के लिए हमने ये साइन लिखना है। तो आप इसको और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, बट दिस इज एन इजीएस्ट एग्जाम्पल। ओके, आफ्टर दैट दिस सिलेक्शन ऑपरेशन इज कवर्ड। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, द नेम ऑफ द ऑपरेटर इज सिग्मा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन क्या करता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ रोज को फिल्टर करके देता है, बाकियों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और बाकियों को रिस्ट्रिक्ट किस बेसिस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अब हमारे पास प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का बच्चे जो सिंबल है इट इज पाई, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये पाई इसका सिंबल है, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन ऑल्सो, क्योंकि ये भी यूनिरी ऑपरेटर है इसलिए ये सिंगल ही टेबल पे काम करेगा, एंड डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सबसेट ऑफ आर। एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट। यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया था, सैलरी जब हमने ग्रेटर देन 10,000 लगाई थी, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं सिर्फ उन स्टाफ मेंबर्स का सिर्फ फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, या मैं उनकी सिर्फ ब्रांच नंबर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। विद सिलेक्शन आप सिर्फ कंडीशन दे पा रहे हो,
और बाय डिफॉल्ट जितने कॉलम्स हैं सारे के सारे आपको डिस्प्ले करवाने पड़ते हैं, लाइक स्टार, ये स्टार की जैसे चलता है, ठीक है। बट समहाउ अगर आप चाहते हो कि सारे कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ ही कॉलम जो है वो डिस्प्ले करवाऊं, तो उस केस में हमारे पास कौन सा ऑपरेटर जो है वो काम करेगा, दैट्स द प्रोजेक्शन ऑपरेटर, राइट। तो ये वर्टिकल सबसेट है, वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल हो गया इधर को, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। और जो आपका सिलेक्शन था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल, उसमें सारा ही कंसिडर कर लेना, ये भी सारा, ये भी सारा, मीन सारे ही कॉलम्स। लेकिन जो आपका प्रोजेक्शन है ये वर्टिकल सबसेट है, वर्टिकल मीन ये होगा, हो सकता है ये और ये ना लिखवाओ तो ये नहीं आएंगे, पोजीशन आप चाहते हो आ जाए, डेट ऑफ बर्थ आप चाहते हो आ जाए, ब्रांच नंबर आप चाहते हो आ जाए, ठीक है। और ये डुप्लीकेट्स भी एलिमिनेट करता है। अगर एक ही टेबल में आपके पास दो सेम नाम के रोज हैं तो उसको ये बाय डिफॉल्ट खुद ही नहीं कंसिडर करेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो प्रोड्यूस प्रोजेक्शन ऑपरेशन, प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज, ठीक है। हमने क्या डिस्प्ले कराना है, सैलरीज की लिस्ट डिस्प्ले करानी है सारे स्टाफ के लिए, और हमने शो क्या कराना है, सिर्फ स्टाफ का नंबर, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम एंड उसकी सैलरी डिटेल। हमने टोटल कितने कॉलम्स जो है डिस्प्ले कराने हैं, इट्स लाइक अगर आपसे क्वेरी पूछी जाए, डिस्प्ले ओनली स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम टेबल स्टाफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्शन में चलना है, और प्रोजेक्शन में जो भी आपने एट्रीब्यूट या कॉलम डिस्प्ले कराने हैं उसमें उसको यहाँ पे लिखना है विद कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, स्टाफ नंबर कॉमा, एफ नेम कॉमा, लास्ट नेम कॉमा, सैलरी, और किस टेबल के ऊपर आपने इसको लगा दिया, स्टाफ के ऊपर, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, स्टाफ नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, पोजीशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ब्रांच नंबर नहीं आएगा, और सैलरी आ जाएगी। टोटल आपके सामने 4 कॉलम जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे इन द सेम ऑर्डर जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो अपने आप उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? मोहित कुमार बच्चे, आपकी भी असाइनमेंट नहीं आई है मेरे पास, मोहित कुमार चौधरी। ओके, तो नवजीत एंड संदीप को भी क्लियर हो गया, और आई एम श्योर कि इनको क्लियर हो ही गया होगा, बाकी उनका थोड़ा डाउटफुल लगता है मुझे, ठीक है। एनी हाउ, तो अभी मैं आपके साथ कुछ पोल्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे, जो क्लियर कर देंगी कि आप तो क्या सीखे हैं, ठीक है। तो दिस इज पोल नंबर 1। आपके पास 1 मिनट है इसको करने के लिए। आई थिंक अभी लॉन्च होगी आपके सामने, अभी हुई नहीं है, हाँ अब हो गई है। तो इसका आंसर जो था वो था थर्ड वन, 1 2 3 4। फिर भी कुछ महानस्तियों ने फर्स्ट जो है 1 2 3 लिखा है, 2, ये राजू कुमार आ रहे हैं, अभी एंटर हो रहे हैं, प्लस
5 पे, और एक मानसी ने 2 3 4 भी लिखा है, ठीक है, और 18 स्टूडेंट्स ने वोट किया है आउट ऑफ 22। उसके बाद देयर इज वन मोर पोल दैट आई एम गोइंग टू शेयर, दिस इज पोल नंबर 2, so I am launching it again. The right answer was selection. तो 13 बच्चों ने किया है उसको आंसर, और 7 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है। उसके बाद मेरे पास एक और पोल है जो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बहुत ही सिंपल पोल हैं, फिर भी काफी यू पीपल आर आंसरिंग वेरी वियर्डली। ये जो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे आंसर करते हैं, दे आर द वंस जो सुन रहे हैं, बाकी तो बस देखो अभी आया एक जिसने गलत किया। Okay, I am ending this poll. Only 13 students voted out of 22, और जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्शन। Okay, so after that बच्चे we have covered these two, right? We have covered the unary operations, selection and projection, and I guess these two operations are clear. Clear है? If yes, तो type yes, otherwise type no. Okay. So after that, we are moving forward and we are doing set operations. Set operations are the easiest ones. सबसे आसान है, ठीक है? और इसमें जो first operation जो हम करेंगे, the name of that operation is R union S. Means union operation करेंगे. So let's go through the definition. The union of two relations R and S defines a relation. एक नया relation बनेगा that contains all the tuples of R. जिसमें टप्पल्स ऑफ आर सारी आएंगी, सारी रोज आएंगी आर की, और सारी एस की रोज भी आएंगी, ठीक है, या फिर दोनों में जो कॉमन रोज हैं वो आएंगी, ठीक है। आर की सारी रोज आनी है, एस की सारी रोज आनी है, और जो दोनों की कॉमन रोज हैं वो एक बार आनी है। इसका मतलब जो डुप्लीकेट टप्पल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, राइट। एंड आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल, ठीक है। अब यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है? ऐसा ना हो कि आर में आपके पास 3 कॉलम्स हो, रिलेशन आर में आपके पास 3 कॉलम्स हो, और रिलेशन एस में आपके पास 4 हो या 2 हो या 5 हो।
So here union compatible, by union compatible I mean that the number of columns of R and S should be same, isn't it? ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? दोनों में अगर रोज सेम है और सेम ही कॉलम्स हैं तभी हम क्या करेंगे? रोज का नंबर नहीं सेम चाहिए, सॉरी, कॉलम्स का नंबर हमें दोनों के लिए क्या चाहिए? सेम। ठीक है, सो इफ आर एंड एस में हमारे पास, सपोज करो आर में हमारे पास आई नंबर ऑफ टपल्स हैं और एस में हमारे पास जे नंबर ऑफ टपल्स हैं, राइट? तो जो उनका फाइनल यूनियन वाला टेबल बनेगा उसमें हमारे पास मैक्सिमम आई प्लस जे टपल्स होंगे। इसमें अगर 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम हो सकता है 5 हो। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी कॉमन है या कितनी डिफरेंट है, राइट? Union is possible only if the tables or the schemas of the two tables match. By schema means number of columns. If they have the same number of attributes. इसका क्या मतलब है? उन दोनों में same number of attributes means columns हो, right? In other words, the relations must be union compatible. Note that attribute names are not used in defining union compatibility. Names नहीं हम use करते. In some cases, the projection operation may be used to make two relations union compatible. अब बच्चे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो R में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं और S में मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इन दोनों के ऊपर यूनियन लगाना है तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इट मींस R में भी सपोज करो अगर 4 है तो S में भी 4 होने चाहिए, पर जबकि मैंने आपको बोला कि S में आई हैव 5 कॉलम्स, तो 5 में से मैं 4 कैसे बनाऊं? 4 बनाने के लिए मैं प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। प्रोजेक्शन में मैं सिर्फ वो 4 कॉलम्स के नाम दे देती हूँ जो मुझे चाहिए और एक कॉलम मैं मिस कर दूंगी, तो प्रोजेक्शन के साथ उसमें 4 कॉलम्स रह जाएंगे जो फाइनल टेबल बनेगा। ठीक है, तो मेरे 2 टेबल्स जो हैं वो यूनियन कंपैटिबल हो जाएंगे। ये जो चीज अभी मैंने बोली है ये आपको क्लियर हुई है जो मैंने अभी बोला है? अगर दोनों में कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, सपोज करो एक में 4 कॉलम्स हैं और दूसरे में 5 हैं, लेकिन यूनियन करने के लिए दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, मतलब आर में भी 4 चाहिए और एस में भी 4 चाहिए, लेकिन एस में तो 5 कॉलम है। एस में 4 कॉलम्स रखने के लिए मैं क्या करूं? एस के ऊपर प्रोजेक्शन लगा देती हूँ, प्रोजेक्शन में उन 4 कॉलम्स के नाम दे देती हूँ, तो प्रोजेक्शन की आउटपुट में सिर्फ 4 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यूनियन किसका करूंगी? आर का और एस की प्रोजेक्शन। अब क्लियर है? संदीप सेज यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 4 कॉलम्स वाले टेबल्स ही बनाने पड़ेंगे। अगर किसी में एक में 3 है दूसरे में 5 है तो मुझे 3 चाहिए या दोनों में 2 ही कॉलम्स चाहिए, तो दोनों के ऊपर प्रोजेक्शन मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको भी एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो बच्चे, ये मेरे पास 2 टेबल्स हैं। ठीक है, एक टेबल का नाम है, अब यूनियन जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। इट मींस यूनियन 2 टेबल्स के ऊपर ही होगा, अकेले एक टेबल के ऊपर यूनियन नहीं होगा, राइट? तो सपोज करो आई हैव 2 टेबल्स, वन इज ब्रांच, अदर वन इज प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, ब्रांच में मेरे पास कॉलम्स कौन कौन से? आई हैव द कॉलम ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पोस्ट कोड। और प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल में आई हैव प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, टाइप and rooms and rent and owner number and staff number and branch number. And as you can see, the number of columns in both the tables are not same. Branch table has total 4 columns and property for rent table has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 columns, right? Now what this query asks, union operation कैसे चलता है? List all the cities, सारे cities मुझे चाहिए where there is either a branch office or a property for rent. ठीक है, इसका क्या मतलब है? मुझे वो सारे सिटीज के नाम चाहिए जहां पे एक ब्रांच ऑफिस भी है, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर्टी है जो कि आप रेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्रांच नंबर इधर से आ रहा है और सिटी भी है। ठीक है, अब कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो दूसरे टेबल से आ रहा है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और सिटी भी इधर है। ठीक है, अब यूनियन क्या कहता है कि मुझे ब्रांच नंबर भी चाहिए, मुझे उस सिटी का नाम चाहिए यहाँ पे कोई ब्रांच भी हो, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी हो। ठीक है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए।
अगर मुझे दोनों ही टेबल में से वैल्यूज चाहिए, इट मींस मुझे यूनियन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। पर यूनियन के लिए मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम चाहिए। पर क्योंकि ये क्वेरी सिर्फ सिटीज के ऊपर फोकस कर रही है, तो आप देख पा रहे हो मैंने सबसे पहले ब्रांच वाले रिलेशन के ऊपर क्या लगाया है, प्रोजेक्शन। और सिर्फ कौन सी सिटी को मैंने कंसिडर कर लिया, सॉरी कौन से कॉलम को कंसिडर कर लिया, ओनली सिटी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑन ब्रांच टेबल एंड सिटी मींस जो मेरे पास इसकी फाइनल आउटपुट आएगी उसमें सिर्फ इसका सिटी कॉलम आएगा। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा प्रोजेक्शन है उसमें मैंने प्रॉपर्टी फॉर रेंट के कौन से टेबल, कौन से कॉलम को सिर्फ कंसिडर किया है, सिटी कॉलम को। तो इस हिसाब से मैंने दोनों ही टेबल में से सिर्फ एक एक कॉलम के ऊपर फोकस कर लिया, दैट इज सिटी एंड सिटी। सो इट मींस नाउ माय टू रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, यूनियन। ठीक है, अब यूनियन के टाइम वो देखेगा सबसे पहले सिटी लंदन। ठीक है, उसमें मेरे पास एक ब्रांच है, लंदन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एबरडीन। अब एबरडीन जो बच्चे, उसमें एक ब्रांच भी है, एबरडीन में एक प्रॉपर्टी भी है। सिमिलरली लंदन में भी एक ब्रांच है और एक प्रॉपर्टी है। तो इट मींस ये दोनों चीजें इकट्ठी आएंगी, मतलब एक ही बार आएगा, लंदन और एबरडीन एक बार आ जाएगा। ठीक है, इसने क्या कहा है, जहां पे ब्रांच भी हो या प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी हो। ठीक है, दोनों चीजें आप कंसिडर कर लो। अब लंदन में ब्रांच भी है, लंदन में आपके पास प्रॉपर्टी भी है, एबरडीन में भी आपके पास ब्रांच भी है, एबरडीन में आपके पास प्रॉपर्टी भी है। ये ब्रांच नंबर यहाँ से भी आपको बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली ग्लासगो में आपके पास ब्रांच भी है, प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, उसके बाद ब्रिस्टल में आप देख पा रहे हो, ब्रिस्टल इधर है, इधर नहीं है, लेकिन उसमें एक ब्रांच है तो आ जाएगा। फिर दोबारा लंदन है यहाँ पे। ठीक है, लंदन में मेरे पास क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, अब इधर ग्लासगो कितनी बार है, 1 2 3, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज है तो वो भी आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो जो इसमें यूनियन में उसने क्या किया है, टू प्रोड्यूस यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस we first use the projection operation to project the branch and property for rent relations। ठीक है, ब्रांच के ऊपर सिटी एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर सिटी। कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर, सिटी के ऊपर। और इसमें हमने क्या किया है, डुप्लीकेट्स को हमने एलिमिनेट किया है जहां पे भी नेसेसरी हो। ठीक है, एंड यूनियन ऑपरेशंस टू कंबाइन दीज न्यू रिलेशंस टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। इसमें उसने क्या किया है, जहां पे भी आपके पास दोनों चीजें कॉमन है उसने वो वाला उठाया है, जहां पे सिर्फ ब्रांच है या प्रॉपर्टी है वो वाला नहीं उठाया है। ठीक है, तो लंदन कंसीडर किया इसने, लंदन में ब्रांच है। ठीक है, और लंदन में प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद इसने एबरडीन कंसीडर किया, एबरडीन में ब्रांच भी है, एबरडीन में प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद ग्लासगो जो है, ग्लासगो में यहाँ पे ये वाला ग्लासगो जहाँ पे ब्रांच भी है और प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, उसके बाद ब्रिस्टल, ब्रिस्टल जिसमें ब्रांच भी है और वेयर इज द अदर ब्रिस्टल, here it has only branch। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ है बच्चे, और यू वांट मी टू रिपीट इट। संजीव आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा आज? अब देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस का क्या मतलब है। हम सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, to project the branch and property for relations, rent relations over the attribute city, जिसमें हम डुप्लीकेट्स को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां पे भी जरूरत हो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, प्रोजेक्शन ये काम करेगा साथ। ठीक है, यूनियन तो डुप्लीकेट्स को एक बार ही लेके आता है ना, दोनों में अगर डुप्लीकेट्स हैं वो सिर्फ एक बार आएंगे ना भाई। यूनियन का यही काम है, जहां पे डुप्लीकेट है उसमें भी है, उसमें भी है, उसको एक बार कंसिडर करें। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अब देखो लंदन। ठीक है, और लंदन कौन सा वाला, B005 वाला, ध्यान से देखो, लंदन B005 वाला इसमें है, इट मींस ब्रांच एग्जिस्ट करती है। अब लंदन यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, लंदन B005 वाला इधर भी है। ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी भी है, तो ये सिर्फ एक बार आया, ये वाला सिटी सिर्फ उसने एक बार आया लंदन।
ठीक है, जो कॉमन है वो उसने क्या कर दिए हैं, एक बार जो है वो कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद एबरडीन। ठीक है, अब एबरडीन में हमारे पास क्या है, ब्रांच है यहाँ पे B007, और यहाँ पे एबरडीन में B07 ब्रांच भी है और हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक बार। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ग्लासगो। ठीक है, अब ग्लासगो बच्चे आप देखो, ग्लासगो में हमारे पास ब्रांच है B003। ठीक है, अब इधर ग्लासगो में सेम के लिए हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, टोटल 4 एंट्रीज हैं। ग्लासगो 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 ग्लासगो, लेकिन सेम है, आएगा सिर्फ वो एक ही बार। ठीक है, कॉमन टाइम आएगा, चाहे इसमें उसकी 4 एंट्रीज हैं, यहाँ पे एक एंट्री है, उसमें सिर्फ उसको एक बार लिखना है, उसने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देना है। आप देख पा रहे हो ये B003 के विद रिस्पेक्ट टू इसने 4 प्रॉपर्टीज दी हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लास को B003 को हमने सिर्फ एक बार कंसीडर कर लिया और हमारे पास आ गया ग्लास को। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आया, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कौन सा, यहाँ पे B004। ठीक है, अब इधर ब्रिस्टल है ही नहीं है, पर क्योंकि एक टेबल में है, हमने उसको एक बार कंसीडर करना ही करना है। जहां पे मल्टीपल एंट्रीज है उनको एक बार लिखना है, अगर एक में एंट्री है दूसरे में नहीं है, उसको हमने एक बार कंसीडर करना ही करना है। ठीक है, अब इसमें लंदन था, ठीक है, लंदन 2 बार है, उसको हमने एक बार कंसीडर ऑलरेडी कर लिया होगा। तो इसके वजह से हमारे पास टोटल 4 एंट्रीज हैं, और क्योंकि हम सिर्फ सिटीज देख रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 4 सिटीज आ गई हैं। अब ये आपको क्लियर है, यहाँ पे रेपिटेशन है, वहां पे एक बार। ठीक है, और कोई चीज एक में है दूसरे में नहीं है तो उसको रखना है। समझ गए हो? सोनू कुमार कह रहा है जी मैम, तो सोनू को समझ आ गया, इट मीन दुनिया को समझ आ गया सारा। मैं आपको ये पीपीटी जब भेजूंगी आप इसको ध्यान से देखना, तो आपको ये बेटर समझ आएगा। ठीक है, ये क्लियर है अब आपको? अब सिमिलरली सेट डिफरेंस करने से पहले हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है, इंटरसेक्शन डिफाइंस अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल टपल्स। अब देखो बच्चे, यूनियन में मैं क्या कर रही थी, कॉमन वाली चीजों को एक बार लिख रही थी। ठीक है, जो चीज एक में है दूसरे में नहीं है उसको मैं लिख रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है इसमें चीज आसान कर देनी है। इसमें क्या करना है, दोनों में अगर कॉमन है तो लिखो, अगर नहीं है तो ना लिखो। ठीक है, so the intersection operation defines a new relation, output relation consisting of the set of all tuples, वो सारे tuples जो R में भी हो and S में भी हो। मीन्स अगर R में है चेक करो S में है कि नहीं है, अगर S में है तो उसको फाइनल में लिखो, अगर S में नहीं है तो उसको फाइनल में नहीं लिखो। सिमिलरली जैसे यूनियन के लिए कंपैटिबल था, सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी वो कंपैटिबल होना चाहिए। इसको हम यूनियन कंपैटिबल ही बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि हमने यूनियन कंपैटिबल के लिए ये टर्म यूज की हुई है कि दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। अगर यूनियन कंपैटिबल है तो इंटरसेक्शन कंपैटिबल अपने आप हो जाएंगे। और यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, और अगर नहीं है तो हमारे पास प्रोजेक्शन है वहां पे हमारी हेल्प करने के लिए। अब आप देखो बच्चे, वो सारे सिटीज लिखो जहाँ पे ब्रांच भी हो और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो हो ही हो। तो यहाँ पे एंड लग गया, जहाँ पे एंड आ गया है इट मीन्स आपको इंटरसेक्शन के ऊपर काम करना है। वो सारे सिटीज जहाँ पे ब्रांच ऑफिस भी हो, ठीक है, और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी हो। ठीक है, अब हमने सिटीज चाहिए हमें, तो मैंने प्रोजेक्शन लगा दी सिटी के ऊपर और ब्रांच के ऊपर, सिटी के ऊपर और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर। इट मीन्स ब्रांच में से भी मैंने सिटी निकाल लिया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से भी मैंने सिटी लगा दिया। अब उसका मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले लंदन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लंदन में एक ब्रांच भी हो और एटलीस्ट एक तो प्रॉपर्टी हो। एक तो कहने का क्या मतलब है, ग्लासगो में तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, एक तो होनी चाहिए ना मिनिमम। लंदन में आप देख पा रहे हो, इस लंदन में, कहाँ है ये लंदन, ये लंदन है, इसमें एक आपके पास ब्रांच भी है, ठीक है, और एक इसमें क्या है, प्रॉपर्टी भी है। तो लंदन कंसिडर होगा कि नहीं होगा? चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इसकी आउटपुट मुझे बताओ कौन कौन से सिटी नेम्स आएंगे।
और यू कैन रेज योर हैंड्स और मैं आपको परमिशन दूंगी, आप बोल सकते हो। अगर गलत होगा कोई इशू नहीं, बस यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ हमने बोलना है। मैं आपको फिर बता दूं, वो सारे सिटीज आने चाहिए जिसमें ब्रांच भी हो और मतलब एटलीस्ट एक तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट हो, दोनों चाहिए। इट्स वेरी इजी, ध्यान से देखो इसको। फर्स्ट टेल मी कितने कॉलम्स आएंगे, कितनी रोज आएंगी? 1 2 3। वेरी गुड संदीप, राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। विशाल ने लिखा 3 विच इज करेक्ट। इट मीन्स विशाल भी सुन रहा है। सवरीत योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो जिनको नहीं इस चीज का समझ आया उसके लिए मैं बता दूं बच्चे, सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस कर दें क्योंकि हमारा फोकस सिटी के ऊपर है। लंदन में हमारे पास प्रॉपर्टी है और लंदन में हमारे पास ब्रांच भी है ना, ये ब्रांच भी है और लंदन में हमारे पास प्रॉपर्टी और ब्रांच भी है। ठीक है, तो लंदन आ गया, एक बार आ गया। ठीक है, उसके बाद हम हमेशा उस टेबल के ऊपर पहले फोकस करते हैं जो फर्स्ट है। ठीक है, एबरडीन देखो, अब एबरडीन में मेरे पास ब्रांच भी है ना, एबरडीन में ब्रांच भी है और उसमें प्रॉपर्टी भी है, तो लंदन और एबरडीन भी आ गया। ग्लासगो में मेरे पास ब्रांच भी है और आप देख पा रहे हो कि ग्लासगो में मेरे पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है। उसने कहा एक हो एटलीस्ट, है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको बच्चे, मेरी आवाज आ रही है?